خوشیاں مناؤ سرور انبیاء آ رہے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ جتنے اہل حدیث جاہل گھومتے ہیں یہ آدھا علم کیا کوڑی کا علم لے کے گھومتے ہیں۔ ان کو رٹا رٹایا طوطا بنا کر کے گھمایا جاتا ہے اور یہ وہی بولتے ہیں جتنا ان کو سکھایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، حق سامنے جب آتا ہے تو بہت مزہ آتا ہے اور حق کو سامنے لانا ہمارا کام ہے۔ اب یہ اہل حدیث کا ایک عالم ہے، انہوں نے فیس بک پر ایک پیج بنایا جس کا نام ہے جمعیت الاہل حدیث۔ تو اس پیج کو جب ہم نے دیکھا، اس میں ان کے نمبر تھے، ہم نے ان کو کال کیا۔ کال کرنے کے بعد 2 دن سے تو یہ لوگ بھاگ رہے تھے۔ آج فائنلی انہوں نے اپنے عالم کو لیا، اور عالم کی دیکھیے آپ کیسے حالت خراب ہوئی۔ تو جب اس سے بات نہیں بنی تو انہوں نے ندیم علوی کو لیا، ندیم برہان پوری، جو ان کا ایک عالم ہے۔ جب اس کو لائن پہ لیا، حالانکہ وہ 6 مہینے پہلے تک مجھ سے بات کرتا تھا، لیکن وہ بخاری کی ایک حدیث پہ جھوٹ بول کے بھاگا ہوا ہے۔ میرا نمبر بلیک لسٹ پہ ڈالا ہوا ہے اس نے، وہ ریکارڈنگ میں نے یوٹیوب پر ڈالی ہے۔ میری اس سے بات ہو رہی تھی عورتوں کے تعلق سے کہ عورتوں کو مسجد میں لے جانا، تو اس نے بخاری کی ایک حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ عورت مسجد آنا چاہے تو اسے نہ روکو۔ تو جب میں نے اس کو پوری حدیث پڑھنے کے لیے بولا، اس حدیث کے آگے موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن بہترین جگہ اس کے لیے اس کا گھر ہے، اور اس سے بہترین جگہ اس گھر کے اندر جو کمرہ ہے وہ ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اس نے آدھی حدیث پڑھی، جب میں نے اس کو پوری حدیث پڑھنے کے لیے بولا تو اس نے نہیں پڑھی۔ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو یہ بھاگ گیا۔ تو یہ ان کا حال تھا۔ آج یہ آیا اور الحمدللہ اس نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ ہر ایک چیز کا حکم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ہم میلاد مناتے ہیں تو یہ لوگ چلا چلا کے کہتے ہیں کہ میلاد پر حکم دکھاؤ، اللہ کے رسول کا حکم دکھاؤ، صحابہ کا حکم دکھاؤ کہ صحابہ نے حکم دیا ہو یا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہو۔ تو جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ جمعیت الاہل حدیث کا حکم دکھاؤ، تو آج اس نے فائنلی مان لیا کہ ہر چیز کا حکم نہیں ہوتا۔ یہی چیز ہم سمجھا رہے ہیں کہ ہر ایک چیز کا حکم نہیں ہوتا، شریعت کا یہ اصول، یہ قانون ہے ہی نہیں۔ اگر یہ اصول اور یہ قانون ہم پکڑیں گے تو بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو الحمدللہ آج اہل حدیث کے منہ سے یہ میں نے اگلوا دیا کہ ہر ایک چیز کا حکم نہیں ہوتا، اور یہ فائنل ہو گیا کہ جو ہم میلاد مناتے ہیں یہ شریعت کے اصول سے بدعت نہیں ہے اور نہ ہی گمراہی کا راستہ ہے۔ یہ میلاد منانا بالکل درست ہے اور بالکل صحیح ہے۔ ہاں، میلاد منانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے ڈھول باجا، ناچنا گانا، ڈی جے چلانا، الٹے سیدھے حرکت کرنا۔ اس سے پرہیز کریے۔ جس طریقے سے شادی کرنا سنت رسول ہے اور شادی بیاہ میں ڈی جے چلتا ہے، ڈھول باجا بجتا ہے، تو اس کے خلاف ہم لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے خلاف ہم میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد میں بھی یہ بات لاگو ہوتی ہے۔ میلاد کو سادگی سے منائیے، اچھے سے منائیے، اور شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے منائیے۔ نعت شریف پڑھیے، قرآن کی تلاوت کریے، حضور کا ذکر کریے، اور لوگوں کو سمجھائیے، اپنے بھائی دوست احباب کو سمجھائیے میلاد کیسے منایا جائے۔ اور جس جگہ اس طریقے کی حرکت دیکھیے کہ کہیں کوئی ناچ رہا ہو یا ڈھول بجا رہا، تو اس کو پکڑیں اور اس کو سمجھائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگ کچھ جاہل لوگوں کی باتوں کو پکڑ کے سب پر لاد دیتے ہیں۔ تو یہ میں نے سامنے لا دیا اس کی حقیقت کو۔ آپ اس ریکارڈنگ کو سنیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور دعا میں یاد رکھیں جمشید علی قادری سنی حنفی بریلوی بھائی کو۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہیلو ہیلو ہیلو، ہاں ہاں شیخ صاحب، ہو گئے؟ فری ہو گئے آپ؟ ہیلو، ارے شیخ صاحب نہ کو بولوں تو کتنے بار بولا ہوں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ ہمارے شیخ صاحب کال کر رہے ہیں، بیزی آ رہا ہے تمہارا، ان سے بات کرو۔ تمہارے شیخ صاحب کا تو ایک بھی کال نہیں آیا، آپ ہی لگا لو۔ میں ابھی آئے گا، دیکھو لوں کیا لائن پر ہاں ہاں، لے لو لے لو لے لو، جلدی لے لو۔ کل تو بھاگ گئے تھے فون کاٹ کے آپ کے شیخ صاحب۔ ایک منٹ فون چالو رکھو بس۔ بہت فون ایک دم چالو ہے، آپ کس کے مقلد ہیں؟ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿ। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold.
वालेकुम। हेलो, बात करो शेख। अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम वाला मनी तबाल हुदा। कौन साहब बोल रहे हैं? 1 मिनट। 2 मिनट रुक जाइए। हाँ जी बताइए। कौन साहब हाँ बोल जी रहे हैं? बताइए। कौन साहब बोल रहे हम जो है अब्दुल रशीद बात कर रहे हैं। हैं? जमशेद अली कादरी बात कर रहा हूँ। हाँ जी बताइए। मैं ये कह रहा था कि मिलादुन नबी के ताल्लुक क्या से आपका क्या मौकिफ है? मिलादुल नबी के ताल्लुक से हमारा मौक़िफ़ वही है जो कुरान और सही हदीस का है क्या बताइए। कि मिलादुल नबी मतलब क्या, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के बारे में पूछ रहे हैं या जी पैदाइश जी पर जी खुशी जी जी मनाने के सिलसिले में पूछ रहे हैं? जी जी, खुशी मनाने के सिलसिले में। खुशी नहीं मना तो हम तो हम्म पैदाइश पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर खुशी है, हम्म लेकिन खुशी पर हमारे माशरे में जो लोग हम्म ईद मिलाद पर जुलूस और चरागा और इसी हम्म तरीके से हम्म डीजे वगैरह जो लगाते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मनाया जाए? जी नहीं, मनाने के लिए किसने कहा है वो भी वही तो तो चाहिए आपसे ना। पूछ रहा हूँ, किसी ने नहीं कहा है। मान लीजिए अल्लाह के रसूल ने हुक्म नहीं दिए, साहबा ने हुक्म नहीं दिए, मान लीजिए, जी ठीक है। जी हाँ तो जो शरीयत का उसूल है हाँ कि अगर अल्लाह के रसूल ने हुक्म नहीं दिए या साहबा ने हुक्म नहीं दिए तो क्या हम नहीं मना सकते? हाँ हाँ जी नहीं, अल्लाह के तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नहीं किया है हाँ, जो नहीं किया है की हम बात उसे नहीं हो रही कैसे है। कर सकते हैं? बात सुनिए, अगर हाँ नहीं जी जी किया जी है, जी सुनिए शेख हाँ साहब, तसल्ली से बात जी करिए। आपने जी कहा जी कि जी जी अल्लाह के बिल्कुल सही। रसूल ने नहीं किया है, तो अल्लाह के रसूल ने तो बहुत सारे शेख काम और ऐसे एक नहीं नहीं किए। नहीं शेख सुनिए ना, नहीं नहीं सुनिए ना, शेख 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 और एक बात नहीं 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 सुनिए। एक मिनट सुनिए तो नहीं मुझे शेख कंप्लीट सुनिए, तो करने दीजिए, अगर हाँ कंप्लीट जी तो जी जी करने जी दीजिए। बिल्कुल बताइए बताइए जी 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 बताइए बताइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगर ये हुक्म नहीं दिया है कि तुम मेरी पैदाइश का यौम विलादत मनाना, या सहाबा हाँ इकराम ने हुक्म नहीं दिया है या सहाबा इकराम ने नहीं मनाया हाँ है ना, तो हाँ ये काम जी मनाना जी जी कैसा हो जाएगा? जी हम्म, ये हाँ काम करना बताइए। कैसा हाँ होगा जी फिर? हाँ जी बोलिए ना जी भाई जी। मतलब आप बताना नहीं बताना क्या चाहते हैं आप? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आप लोगों जी ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पेज बनाया है जमीयतुल अहले हदीस के नाम से, जी ठीक है, जी 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 तो अल्लाह के रसूल हाँ ने जी कहीं हुक्म दिया है कि अपना नाम जमीयतुल अहले हदीस रखो, या सहाबा ने हुक्म दिया है कि अपना नाम जमीयतुल अहले हदीस रखो? ये जमीयतुल अहले हदीस कुरान जी हदीस से साबित है कि अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को पुकारा हो, ए अबू बकर जमीयतुल अहले हदीस इधर आओ, या हजरत अबू बकर ने हुक्म दिया हो, ए जी सहाबा तुम अपने आप को जमीयतुल अहले हदीस पुकारो, या ताबई ने दिया हो या तबे ताबई ने दिया हो। एक मुस्लिम शरीफ में हदीस मिलती जी है जी कि जी अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक जमात ऐसी आएगी जो हक पर हाँ होगी, उसका नाम होगा असहाबुल हदीस। जी जी अब इसका मुकदमा जी इमाम जी जी तिरमिजी लिखते हैं, इमाम तिरमिजी इसका मुकदमा जी लिखते हुए फरमाते हैं कि हाँ असहाबुल जी हदीस से मुराद जी मुहद्दिस का गिरोह होगा, जो मुहद्दिस की जमात होगी। अब जी जी मुहद्दिस की जी तारीफ आपको पता होगी, जी आप आलिम है। आम जी जी आदमी बिल्कुल या जी जाहिल आदमी उसमें शुमार नहीं है। तो अब ये हाँ जमीयतुल जी अहले हदीस आपने जो नाम रखा, जैसे मिसाल के तौर पर मैं इंजीनियर नहीं हूं, अगर जी मैं अपना नाम इंजीनियर रखूं जी कि मैं जी इंजीनियर हूं तो मैं जाहिल हूं। जी जी हाँ और जी अगर आप असहाबुल जी हदीस जी नहीं है, असहाबुल हदीस से मुराद है मुहद्दिस का गिरोह, वो जी जमात जी हमेशा जी हक पर हाँ होगी। तो आप अपना नाम अहले जी हदीस जी कैसे रख सकते हैं? कुरान हदीस में इसका हुक्म नहीं है। तो मिलादुन नबी मनाना अगर हुजूर का जी हुक्म नहीं है या साहबा का हुक्म नहीं है, जी हम बिल्कुल मनाते हैं, तो आप हमें सही है। बिदती कहते हो। तो अगर आपने जी जमीयतुल जी अहले हदीस अपना नाम रखा है तो जी ये बिदत नहीं जी हुआ? जी जी इसका जी जवाब दीजिए। जी मौलाना माशाल्लाह, आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे बड़ी खुशी हुई। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपके इल्म में उम्र में बरकत अता फरमाए। शेख, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने अपना नाम गिनाते हुए मुझे ये कहा कि मेरा नाम जो है, क्या बताया आपका नाम मेरा पूछा शेख नाम ने? मेरा नाम जमशेद अली कादरी। जी जी, हम जमशेद अली कादरी है ना? कादरी हम्म आप क्यों लगाते हैं? चलिए, कुरान व हदीस से तो साबित है क्या? मैं आपके लिए हुज्जत जी हूँ। मैं तो मिलाद भी जी मनाता हूँ, 11वीं भी मनाता हूँ, आके मनाओगे मेरे साथ? मैं जी आपके लिए हुज्जत नहीं हूँ जी ना? जी जी
میں نے تو آپ کو نہیں، ہاں تو ہمارے ہم لیے نے تو دیکھیے صرف پہلے بات قرآن سنیے، اور صحیح حدیث پہلے ہے۔ ہاں پہلے بات جی سنیے، جی 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 بتائیے۔ آپ نے کہا جی کہ قرآن حدیث میں قادری لگانا ہے کیا، یہ بولا نا آپ نے؟ ہاں جی ہاں، ہاں جی اب جی یہ بتائیے کہ جو شخص جس مدرسے سے فارغ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی قاسمی لگاتا جی ہے اپنے آپ کو، وہ قاسمی مدرسے سے فارغ ہوتا ہے، جی 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 ابھی کوئی جامع جی ازہر میں پڑھ بالکل کے صحیح ہے۔ نکلے گا تو وہ اپنے نام کے آگے ازہر ہی لگاتا ہے، کیونکہ جامع ازہر ازہری، سے پڑھ کے نکلا ہے۔ ہاں جی تو یہ جی نام جی جی، لگانا یہ کوئی، شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہاں آپ ہاں ابھی ازہری ہیں سنیے، شاید۔ ابھی سنیے نا، ابھی جی تو اور جی بہت ہاں کچھ آئے جی گا سامنے۔ ہاں جی تو یہ نام لگانے کو آپ جی جی پکڑیں جی گے، اگر یہ نام لگانے کو اگر آپ پکڑیں ہاں گے جی تو یہ بتائیے جی کسی اللہ جی والے جی کی طرف اپنے نام کو کسی ہاں جی اللہ والے کی طرف منسوخ کر دیا جائے، مثال کے طور پہ میں اپنا نام ابو بکر رکھوں مثال کے طور پہ، جی تو جی جی قرآن حدیث میں تو نہیں ہے کہ جی تم جی اپنا نام ابو بکر رکھو، لیکن میں نے صحابہ کی طرف نسبت کی، جی تو اگر میں جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کر کے اپنا نام قادری رکھوں تو کیا بدعت ہو جائے گا جی یہ؟ جی جی نہیں 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 نا؟ نہیں، میں اس لیے کہہ رہا تو ہوں کہ میں وہی آپ پوچھ رہا ہوں، نہیں سنیے، میں آپ وہی نہیں پوچھ نہیں رہا نہیں ہوں، آپ شیخ، کا یہاں سنیے اصول ہے، شیخ، سنیے جی شیخ جی سنیے، آپ کا ہاں اصول ہے کہ ہاں جو جی حکم نبی علیہ الصلوۃ نہیں والسلام نہیں اصول دیے، اصول نہیں نہیں شیخ، یہاں قرآن سنیے حدیث میں جو سنیے چیز شیخ، نہیں ہے، سنیے، اصول جو چیز نہیں قرآن حدیث میں شیخ نہیں ہے شیخ وہ بدعت ہے، آپ کا اصول ہے۔ تھوڑا سنیے، نہیں نہیں شیخ یہاں نہیں نہیں ہوں نہیں یہاں سنیے شیخ، ہوں اصول ہمارا نہیں ہے، اچھا کس کا ہے؟ اصول جو ہے قرآن اور اس کا ہے، تو جی وہی جی تو میں پوچھ رہا ہوں، اصول جمیعت الاہل قرآن اور حدیث، حدیث کا جمیعت ہے۔ الاہل حدیث ذرا ثابت کریے نا قرآن حدیث سے، وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ جی 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 آپ ماشاء اللہ سے آپ جو ہے عالم ہیں جی، دیکھیے آپ لوگوں کے لیے فإن تو خیر الحدیث کتاب اللہ، جی جی فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوں اس کا کیا آپ جو ہے مفہوم بتائیں گے شیخ؟ دیکھیے کتاب اللہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، آپ نے جو پڑھا ہے نا اس میں کتاب اللہ ہے، جی کتاب اللہ سے جی مراد کیا ہے؟ قرآن، جی جی ہاں جی قرآن ہے نا؟ جی میں نے پوچھا آپ سے اسی قرآن فإن کے خیر اندر، الحدیث فإن ہاں خیر الحدیث ہاں یہاں فإن حدیث کا خیر بھی ذکر، الحدیث، ہاں حدیث اور قرآن دونوں آ گیا، جی جی ٹھیک ہے؟ تو جی میں جی جی وہی جی تو آپ سے پوچھ ہاں رہا جی ہوں نا کہ قرآن حدیث پر چلنا، یہ جیسے قرآن حدیث پر چلنا، ہاں جی جی کوئی بھی شخص دنیا ہاں کائنات میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو پوری جی حدیث پر بالکل مکمل چل بالکل سکتا جی ہو، اور نہ ہی قرآن پہ ہاں چل جی پائے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی حدیث جی بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں ہاں کہ آپ کو اس کو چھوڑنا پڑے گا، ہاں بہت سی کیسے؟ حدیثیں ایسی، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اگر آپ بخاری کی حدیث پڑھیں جی گے، جی حدیث سمجھائیے نمبر 142، اگر بخاری کی جی حدیث پڑھیں گے حدیث نمبر 142، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب جی تم بیت الخلاء میں داخل ہو تو اپنا رخ مشرق کی طرف کرو، ہاں جی قبلہ رخ نہ کرنا، جی اپنا رخ کہاں کرو؟ ہاں جی مشرق کی طرف کرو۔ اب ہاں یہ جی حدیث کو لے کے اگر ہاں آپ مدینے بالکل جاؤ گے شیخ صاحب، اگر یہ حدیث کو لے کے آپ مدینے جاؤ ہاں گے تو جی مشرق کی طرف منہ نہیں کرو گے، کیونکہ مشرق کی طرف قبلہ ہو جائے گا، ہاں تو اس حدیث کو چھوڑنا ہاں جی پڑے گا آپ کو، پھر کیا نہیں کرنا نہیں نہیں پڑے گا؟ نہیں آپ کیا نہیں کرنا نہیں پڑے نہیں گا؟ آپ پھر وہاں جو کے ہے لوگوں کی تقلید کرنی پڑے حدیث گی۔ نہیں 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 ہاں تقلید ہم کسی کی نہیں کرتے ہیں، نہیں کرنی اچھا امام اس حدیث کا محمد کیا کرو رضا گے؟ صاحب اس نہیں حدیث کا سنیے کیا سنیے کرو گے؟ ایک نہیں منٹ نہیں سنیے شیخ سنیے شیخ شیخ صاحب، آپ نے ہاں مجھ سے جی پوچھا پورا، نہیں دیکھیے دیکھیے، نہیں کم دا پوائنٹ، کم دا شیخ پوائنٹ، نہیں شیخ یہاں پلیز کیپ سنیے، کوائٹ، پلیز کیپ کوائٹ، ہاں کم جی دا جی پوائنٹ، بالکل آ رہا ہوں، ہاں میں کم پوائنٹ دا کو ہی پوائنٹ، آ رہا ہوں شیخ آپ نے یہاں مجھ سے سنیے، پوچھا، آپ نہیں ثابت نہیں کریے، شیخ سنیے آپ نے ثابت کرنے شیخ کے لیے بولا نا، نہیں شیخ یہاں ثابت کرنے سنیے دیجئے، شیخ، میں آپ کی اتنی بات ثابت کرنے نہیں تو نہیں آپ دیجئے۔ کی اتنی باتیں سن رہا ہوں میں، جی جی ہاں جی ثابت کیجیے، جی جی بولیے، آپ نے کہا جی کہ بتائیے آپ ثابت کریے، آپ ہی سے مثال سنوں گا میں نے جی آپ کو مثال کے طور پہ ایک حدیث ہوں بتائی کہ یہ بخاری کی حدیث نمبر 142، جی جی کہ جی تم جب بیت جی جی الخلاء جی میں داخل ہو جاؤ تو اپنا رخ مشرق کی طرف کرو۔ اب یہ جی حدیث کو جی لے کے ہم مدینے جب جائیں گے تو یہاں لکھا ہے حدیث میں کہ اپنا رخ مشرق کی طرف کرو، اور دوسری حدیث ہمیں نہیں ملتی کہ جی مدینے کی طرف اپنا رخ یہاں کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو ہاں ہم جی پھر اس حدیث پر نہیں چلیں گے، کیونکہ مشرق کی طرف لکھا ہے اور مشرق کی طرف وہاں سے قبلہ ہو جاتا ہے، تو ہم اس ہاں حدیث پر جی نہیں چلیں گے، اس حدیث پر ہم بالکل ہی نہیں چل ہاں سکتے، اس حدیث کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، ہاں ہمیں کیا کرنا پڑے گا پھر؟ ہاں ہمیں وہاں کے عالم کی، ہاں عالم کے اوپر تقلید کرنی پڑے گی کہ عالم ہاں کس طرف رخ کرنے کے لیے کہتا ہے، عالم کہے گا کہ نہیں اس حدیث کو چھوڑو، ہاں اب آپ کا ہاں اپنا رخ دکشن کی طرف کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو ہاں آپ نے یہ کہا کہ آپ ثابت کریے قرآن، میں آپ کو صرف ایک حدیث دیا ہوں، ابھی میرے پاس اتنی حدیث ہے کہ آپ اس پہ عمل کر ہی نہیں ہاں پائیں گے، آپ کو ہر جگہ اس کو چھوڑنا ہاں پڑے گا، جی ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کہا قرآن اور حدیث پر ہاں چلنے والی جماعت، جیسے اب میں ہاں آپ کو جی بتاتا ہوں، قرآن میں آیت ہے کہ ہاں 5 وقت کی نماز دن سے شام تک
मतलब दिन के पहर से रात के पहर के बीच तक शाम 5 वक्त की नमाज को कायम करो, है ना कि नहीं, जी जी है ना। जी तो बिल्कुल। अब अगर आप दक्षिण पोल में जाएंगे तो एक कंट्री ऐसी है कि वहाँ 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है। बिल्कुल सही है, मुझे तो मालूम कुरान है। की इस आयत को आपको छोड़ना पड़ेगा वहां पे, वहां पर जिस हिसाब से लोग वहां नमाज पढ़ते हैं आपको वैसा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो रात ही है, हाँ दिन तो है ही नहीं। तो कुरान की इस आयत को छोड़ना पड़ेगा, आप उस पर हाँ चल ही हाँ नहीं सकते जी। हैं। समझ में आ रही है नहीं ना नहीं, बात। हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो सकते कैसे उस और पर अमल छोड़ेंगे भी करेंगे, नहीं कैसे इंशाअल्लाह। अमल और कैसे करेंगे, जो अहादीस, वहां दिन ही नहीं होता तो अमल ये कैसे करेंगे। नहीं 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 शेख, अल्लाह के वो दज्जाल के बारे में वो हदीस आपको पता अरे है ना। शेख साहब मेरी बात नहीं, सुनिए, आप आपने दज्जाल के बारे में, नहीं, आपने दज्जाल के बारे में मुहद्दिस वो के हदीस उसूल को पता है समझा ही नहीं। आपको? सुनिए मेरी बात सुनिए, आपने मुहद्दिसों के उसूलों को समझा ही नहीं ये है। अब मैं समझाइए, आप मुझे आपको समझाइए। समझा देता हूँ, आपको समझा ये देता सुनिए, हूँ यहाँ सुनिए समझा देता हूँ, शेख, समझा देता हूँ, सबसे समझा देता पहली हूँ, बात क्या है, समझा देता आप हूँ। मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। हाँ समझाइए समझाइए। अच्छा लेकिन समझा शेख, मैं देता हूँ, आपको एक बात बताता हूँ। नहीं समझा देता हूँ, अगर सुनिए यहाँ सुनिए, अगर यहाँ सुनिए मुहद्दिस की शेख, जमात को अल्लाह के कुरान रसूल और ने, सही हदीस के मुताबिक, कुरान और सही हदीस के मुताबिक अगर बात आपकी सही निकले तो इंशाअल्लाह मैं आपकी बात को मानूंगा। अगर मेरी बात कुरान और सही हदीस के मुताबिक सही निकले तो इंशाअल्लाह आपको भी मानना पड़ेगा। मंजूर है आपको? बिल्कुल मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। एक पूरे दिन बात करिए मुझसे, पूरे दिन बात करिए मुझसे, जी ठीक जी है। जी जी बिल्कुल। लेकिन हाँ, लेकिन आप सुनिए मेरी बात। आपने कहा, देखिए हाँ मुहद्दिस जी जी कुरान हदीस को समझना, कुरान हदीस को समझना, हाँ जी इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक जमात ऐसी होगी जी अस्हाबुल हदीस कि जिसको हर दौर में उसको कोई ना कोई हाँ जी परेशानी आती हाँ रहेगी, जी लेकिन वो हक पर रहेगी। जी तो अस्हाबुल हदीस जी क्यों बिल्कुल फरमाया, सही है। क्यों फरमाया, सुनिए क्यों फरमाया, मैं हाँ समझाता हूँ जी आपको। हाँ इमाम शाफई हाँ रहमतुल्लाह हाँ अलैह ने, समझाइए। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह हाँ ने इमाम मालिक से पूछा, हम्म, अरे इमाम हाँ मालिक मुझको ये बताओ कि ये जो बुखारी की हदीस है, फरमाया कौन सी हजरत, हम्म, कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी गोया वो काफिर हो गया। तो तुम इस जी हदीस को कैसे लोगे। इमाम मालिक से पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहे हैं, हाँ इमाम शाफई, ठीक है। तो हाँ इमाम जी मालिक जवाब देते हैं, इमाम मालिक जवाब देते हैं, हजरत बेहतर तो आप ही बताएंगे। आप ये बताइए कि जी इमाम शाफई भी मुजद्दिद हैं, हाँ जी ठीक है ना, और जी मुस्तहिद हैं, और इमाम हाँ मालिक भी जी मुस्तहिद बिल्कुल। हैं। हाँ तो इमाम शाफई से जी पूछ रहे हैं मालिक कि आप ही बताएंगे। तो आपने फरमाया कि अगर आपने इस हदीस को ऐसे समझा तो गोया आप तो सबके ऊपर कुफ्र का फतवा डाल देंगे, ठीक है। हाँ इस हदीस को समझाया हमें हाँ इमाम जी शाफी रहमतुल्लाह ने कि इसका मतलब ये है कि हाँ जी आपने कुफ्र वाला अमल किया, काफिरों वाला अमल किया, हाँ एक वक्त की नमाज छोड़ी, जी हाँ गोया वो काफिर नहीं होगा, कुफ्र जी वाला जी अमल, लेकिन हदीस के अल्फाज है हाँ कि वो जी काफिर हो गया, हाँ ठीक जी है। बिल्कुल सही बात है, आप माशाल्लाह अब बहुत अच्छी बात की है। अब बिदअत की जो तारीफ है कि जो काम सुन्नत हाँ रसूल के खिलाफ हो, जिसकी सुन्नत कहीं से हाँ मिलती ना हो, ठीक है, हाँ तो तो वो उसको काम बिदअत बिदअत कहते हैं। होगा। हाँ, उसको बिदअत कहते हैं। नहीं, ये बिदअत की ये तारीफ ही इमाम गलत है हजर आपकी ना बात। ना ये इमाम हजर आपके अस्कलानी नजर, रहमतुल्लाह अलैह का हाँ कौल जी है, सुनिए, इमाम हाँ हजर जी जी अस्कलानी हाँ रहमतुल्लाह अलैह जी, का तो कौल है। हवाला दीजिए। मैं दे रहा जी हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हाँ हूँ तहजीब जी तहजीब जी 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 तरतीब जी की कोई किताब है, उसके अंदर ये हवाला मौजूद है, तारीफ की है आपने हाँ जी, बिदअत की। मुझे पता है। आप सुनिए, नहीं आप नहीं नहीं नहीं, सुनिए, आप तहजीब सुनिए, तहजीब किताब, नहीं नहीं आप सुनिए सुनिए, शेख, दूसरी हवाला, तहजीब दूसरा हवाला, तहजीब का जो आप हवाला, नहीं नहीं दूसरा हवाला, नहीं नहीं नहीं, पहले हवाला तो मुझे इत्मीनान चाहिए ना। हवाले में जो आप हवाला बता रहे हैं उसके अंदर मैं अच्छा देखूंगा आप थोड़ा, क्या मेरे बिदअत की पास तारीफ किताब लेते है। हैं, आप क्या लेते हैं बिदअत की तारीफ, जी आप क्या लेते हैं बिदअत की तारीफ। नहीं नहीं, आप नहीं नहीं, पहले आपकी बात मैं सुनूंगा, उसके तो बाद मुझे एक हवाला एक करके मुकम्मल तो करने इंशाअल्लाह दीजिए ना, आपकी बात। मैं आपको हाँ सारे जी हवाले बताइए, भेज हाँ दूंगा। बताइए। दूसरा हवाला अल विदाया हाँ वल जी निहाया बिल्कुल हाफिज बिल्कुल इब्ने बिल्कुल। कसीर, जी 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 दूसरा चलिए हवाला, अच्छी बात हाँ पता इब्ने है जी, कसीर। बताइए। कितनी जिल्दों में हाँ मालूम है किताब, हाँ जी कितनी जिल्दों में है हाँ जी तारीख इब्ने कसीर, बताइए, कितनी जिल्दों में। आप बताइए। अल्लाह अकबर, हाँ मैं पूछ बताइए रहा आप। हूँ आपसे आलिम साहब, कितनी जिल्दों में है। नहीं आप बताइए, 17 आप जिल्दों में बताइए है, कितनी जिल्दों में। 17 हाँ जी जिल्दों में है, हाँ 17 बिल्कुल जिल्दों सही। में, हाँ ठीक है। हाँ और जी बताइए। हाँ, हाँ चौथा हवाला लीजिए, आपकी फतावा नजीरिया, फतावा नजीरिया हाँ कितनी जिल्दों में है। हाँ जी, फतावा नज़ीरिया जो बता रहे हैं बुद्धिस्ट अंदाज से, हमारा मौकिफ किसी भी मसलक का, किसी भी हाँ मसलक का हाँ। इंसान क्यों ना हो, अब ये किसी भी बताइए, मसलक का अब आलिम ये क्यों ना बताइए, हो, सुनिए, आलिम की यहाँ अगर बात ही नहीं हो रही है, चलो यहाँ नींद आलिम आ की गई, बात ही नहीं हो रही है, नींद आ गई।
यहाँ बात आलिम की जी, नहीं जी। हो रही है, यहाँ बात हो रही है, जी जी यहाँ बात हो रही है उसूल की। जो उसूल आपने बनाया, जी जी जो बिदअत की तारीफ आपने की, मुझे हमने नहीं एक बनाया हवाला, है भैया, एक हवाला दे दो मुझे, शेख हमने नहीं बनाया है। एक हवाला दे नहीं, दो मुझे आप, मुहद्दिस का हवाला पेश करो। कौन सा हवाला, कई का हवाला? जो आपने किसका? बिदअत कहा ना कि हर हर दिन में नया काम बिदअत है। नहीं हमने नहीं बनाया है वो, और हम्म। जो तारीफ आप बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। क्या वो बता रहे हैं? तारीफ बिल्कुल गलत है। अगर इस तारीफ को आप आपने कुरान गलत और साबित में कर जो दिया, नहीं है। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर आपने इस तारीफ को जी, गलत जी, साबित हाँ। कर दिया, मैं शिकस्त लिख के दूंगा आपको अपनी, हाँ। और कभी बात नहीं करूंगा। शेख अबू बकर जजायरी हफिज़हुल्लाह, शेख अबू बकर जजायरी अरे जनाब मन, सुनिए सुनिए, उसके अंदर आप अबू बकर ज़कात, सुनिए 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 सुनिए, सुनिए, तहजीब तहजीब जिस किताब का हवाला आप दे रहे हैं ना, उसी किताब के अंदर उसकी जिल्द नंबर 2 के अंदर इंशाल्लाह आपको ये हवाला मिलेगा। एक और तीसरी बात, क्या मिलेगा हवाला? हवाला क्या मिलेगा? हवाला क्या मिलेगा? अल्लामा अब्दुल हई लखनवी। हाँ, अब्दुल हई कौन है? अब्दुल हई लखनवी। बात मुहद्दिस की हो रही है ना, ना ना, सुनिए सुनिए, बात मुहद्दिस की हो रही है, मुहद्दिस पर आइए पहले आप। और अब्दुल हक, अगर आप अब्दुल हई पर आएंगे तो अब्दुल हई से तो मैं वसीला भी साबित कर दूंगा, मदद भी साबित कर दूंगा, फिर आप भागेंगे कि मैं उसको नहीं मानूंगा। फिर भागना नहीं आलिम साहब, मैं भागना, जिसका भी नाम लोगे सोच समझ के लेना मेरे आगे। मैं अगर यहाँ सुनिए, जिसका भी नाम लोगे, अब्दुल हई की किताब सुनिए, अब्दुल हई की चार हवाले मैं आपको दूंगा कि वो वसीले के कायल भी थे, वसीला भी मांगते थे। फिर भागना मत आप। मैंने आपको इमाम हजर का, सुनिए, इमाम हजर का दिया, इमाम शाफई का दिया, ठीक है, इमाम शाफई का हवाला दिया, इमाम हजर का दिया, कि जो उसूल आप बना के बैठे हैं, बताने से मैं तो कह रहा हूँ, हवाला गलत साबित करने वाले को मुंह मांगा इनाम में दूंगा और शिकस्त भी लिख के दूंगा। बिदात की तारीफ, हाँ सुनिए, बिदात की तारीफ, बिदात की तारीफ की 2 किस्में बताई हैं। सुनिए, मेरे को बोलने तो दीजिए, हवाला मुझे बोलने तो दीजिए, आपको हदीस भी दूंगा, मैं हदीस भी दूंगा आपको। बिदात की 2 तारीफ है हदीस के अंदर। बिदात की एक बिदत हसना, एक बिदत सहिया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो दोबारा 20 रकात तरावी शुरू कराई थी, सुनिए, खामोशी से सुनिए, फिर बोलने नहीं देते हैं आप। नहीं आप कितनी बातें सुन रहा हूँ शेख, आप सब बताते चले। अब सारी बातें छोड़ दीजिए, अब आप सारी बातें छोड़ दीजिए, जमीयतुल अहले हदीस साबित करिए, जमीयतुल अहले हदीस साबित करिए, जमीयतुल अहले हदीस साबित करिए। चलिए, छोड़ दिए सारी बात। मैं साबित किया ना, कहाँ साबित किया आपने? किताबुल्लाह ना 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 ना, ये तो यहाँ पे कहाँ लिखा है कि कुरान हदीस पे चलने वाली जमात अहले हदीस है? कहाँ लिखा है यहाँ पे? कहाँ लिखा है यहाँ पे? तो सहाबा ने अपने आप को अहले हदीस क्यों नहीं पुकारा? नहीं है, ये हवाला है, ये तर्जुमा है ही नहीं जो आप पढ़ रहे हैं। यहाँ से कहाँ साबित है कि अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया हो? जैसे तो मैं आपको साबित कर दूं कि अल्लाह के रसूल ने पीर का रोजा रखा, अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया मैं इस दिन पैदा हुआ हूँ, और आप फिर भी कहते हैं मिलाद का सबूत दो हमें। सुनिए, इधर पहले बात सुनिए, आप मुझसे मुझे ये लिखा हुआ दिखाइए अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया हो। शुरू में आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि अल्लाह के रसूल ने हुक्म नहीं दिए। खामोशी से सुनिए, आपने कहा था कि अल्लाह के रसूल ने मिलाद मनाने का हुक्म नहीं दिए, मिलाद मनाने का हुक्म नहीं दिया। हुक्म दिखाइए मुझे, हुक्म दिखाइए मुझे। अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया हो अपना नाम जमीयतुल अहले हदीस रखो। शेख साहब, ये कड़वा कड़वा थूथू मीठा मीठा हब नहीं चलेगा। शेख साहब, ना 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 ना, अल्लाह के रसूल ने ये कहाँ फरमाया? अल्लाह के रसूल ने ये कहाँ फरमाया अपना नाम जमीयतुल अहले हदीस रखो? ऐसा लगता है कि आप सीरतुन नबी का सही से आपके पास अच्छा, सीरत नबी मनाना कैसा है? सीरत नबी मनाना कैसा है? ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, नबी सल्लम का आपको मुताला नहीं, तो आप हवाला पेश करें ना भाई। नदीम खान साहब भाई जरा बात करते थे, आप हवाला पेश करो ना इधर मेरे पास। ये कौन आया? हेलो, ये कौन आए? हेलो, कौन आए? बात कीजिए। नहीं, ये कौन आए? पहले कौन बोल रहे? नदीम खान बोल रहे हैं, बात कीजिए। हाँ, नदीम खान बोल रहे हैं। तो ये आपके आलिम साहब, एक मिनट खामोश रहो, ये आपके आलिम साहब अहल नहीं है बात करने के लिए? इनका हो गया काम है ना? अहल है ना? अहल। अरे नदीम भाई, नदीम साहब आए। नदीम साहब, अरे आप अहल हो कि नहीं हमसे बात? नदीम साहब, पहले खामोश रहो,
पहले खामोश हो। ये जो आपके आलिम आए हैं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो पूरी नज्द से बात कर लूंगा, पहले खामोश रहो। ये जो आलिम साहब है, आलिम से बात करेगा ना, ये जो आलिम साहब है, ये जो आलिम साहब है, ये जो आलिम साहब है, इनका काम हो गया, इनके बस की बात नहीं है। कर दिया हजरत, कर दिया। लगाइए नदीम खान आया, लगाइए। लगाओ 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 लगाओ। काट कैसे देगा, लगाओ। इनकी धज्जियां उड़ा दूंगा मैं पूरी नजद की। शेख साहब को शेख चिल्ली बना दूंगा, शेख चिल्ली। अभी नहीं उठा रहा। यही तो इनकी औकात है। जब ये फंसते हैं ना तो 10-10 को लाइन पे लेके आते हो, कहते हैं हम एक दूसरे की तकलीद नहीं करते। क्या समझो, ये इनकी औकात है। इनके आलिम को जब देखा कि इनके आलिम की बात बस की बात नहीं है तो लाओ दूसरे को ले। ये देखो इब्ने तैमिया भी भौंक रहा है। यही हाल है इनका। अब ये नदीम को लेके आया, इसके बस की बात है, मेरा नाम सुनते ही भागेगा। मेरा नंबर ब्लॉक करके बैठा हुआ है ये नदीम अलवी। हाँ हेलो हेलो, हाँ भेज रहा हूँ ना, नंबर भेज रहा हूँ मैं। अरे नंबर मत भेजो, आपके आलिम साहब बात नहीं कर सकते, बात करने के अहल नहीं है वो। 2 मिनट रुको यार, वो नहीं बात तो करेंगे, उनका उनसे काम हो बात गया, कर लेना, उनका confirm काम हो गया, उनके पास जवाब नहीं है। जमीयतुल अहले हदीस बिदती नाम जो रखा है। 1-2 मिनट में आपको नदीम खान का फोन आ जाएगा। नदीम खान तो मेरा नंबर ब्लॉक करके बैठा हुआ है। उनसे बात सुनो, नदीम खान तो मेरा नंबर ब्लॉक करके बैठा हुआ है। नदीम खान नंबर उठाएगा। अरे तुम मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। नदीम खान मेरा नाम। में कट क्यों किए तुम? मैंने कहा कट किया, तुम लोग कट करके भागे हो, झूठ बोलते हो। नहीं कट कर दिया। झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आता। अल्लाह की कसम खाओ, अल्लाह की कसम खाओ, किसने कट किया फोन? अल्लाह की कसम खाओ, किसने किया फोन का? तुम नहीं आए ना, तुम बात। अल्लाह की कसम खाओ, कौन कटा? अल्लाह की कसम खाओ, कौन फोन काटा? अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ, तुम्हारा आवाज नहीं आया। हेलो, ये देख झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तुम भाग गए। देखे तुमसे भाई, झूठ बोल रहा है। अभी नदीम तो मैं कॉन्फर्मेशन लेता हूँ। तो नदीम खान को बोलो मेरा नंबर खोले ना, मैं तो उसको कॉल कर रहा हूँ डायरेक्ट। मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है वो। बुखारी की हदीस में झूठ बोल के भागा हुआ है वो। बुखारी की हदीस में झूठ बोल के भागा हुआ है वो। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको, रुको मैं लेता हूँ ना कॉन्फ्रेंस पे। हाँ लो 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 लो। और इस वाले आलिम का काम हो गया, इसके बस की बात नहीं है। ನೀವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ। लाइनನಲ್ಲಿ इरी। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has. हेलो, हाँ बात This call is now being recorded. हेलो, हाँ जी बोलिए। नदीम साहब मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट से हटाइए पहले आप। मैं जमशेद अली कादरी बात कर रहा हूँ, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट से हटाइए। भाई आपका नंबर क्या, मैंने किसी का भी नंबर ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला। अल्लाह की कसम आपने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। जब आप बुखारी की हदीस पे झूठ बोल के भागे हैं तब से मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है आपने। नदीम साहब जब से बुखारी की हदीस पर झूठ बोल के भागे हुए हैं तब से मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है आपने। मैंने आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला होगा, अपना अल्लाह ताला से दुआ कर दे, अल्लाह जो झूठा उसकी पूरी फैमिली को उठा ले। अल्लाह ताला से मैं अभी दुआ करता हूँ कि जिसने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला और जो झूठ बोल रहा हो दुनिया के अंदर कीड़े पड़ पड़ के मरे वो। आमीन बोलो। दुनिया के अंदर कीड़े पड़ पड़ के मरे वो। आमीन बोलो। अरे आमीन। आप देखो मैं तुमको डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ जमशेद भाई। ओ जमशेद भाई, मैंने कितनी बार इसको कॉल किया, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला इसने। भागने का तुम बुखारी शरीफ की हदीस पर झूठ बोल के भागे हुए हो मुझसे, मुझे बोल रहे भाग रहा है। अरे तुम बुखारी की हदीस पर मुझसे झूठ बोल के भागे हो, जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है। झूठ बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? चलो चलो छोड़ो, जिस लिए तुमको ये लेकर के आया वो साबित करो। जमीयतुल अहले हदीस नाम साबित करो। जमीयतुल अहले हदीस नाम साबित करो। जमीयतुल अहले हदीस नाम साबित करो। अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया हो कि अपना नाम जमीयतुल अहले हदीस रखो।
अरे हर चीज का हुक्म थोड़ी दिया जाता है, कुछ यही तो मैंने कहा था। ये देखो भाई, ये तुम्हारे शेख साहब का भी हालत खराब हो गया, ये भी नहीं साबित कर हर चीज का हुक्म नहीं दिया जाता। यही तो हम कहते हैं कि जब हम मिलाद मनाते हैं तो तुम्हें हालत क्यों खराब होती है? बनो, हुक्म बताओ। जब हम मिलाद मनाते हैं तो तुम्हारी हालत क्यों खराब होती है? जमीयतुल अहले हदीस नाम रखे हो, कुरान हदीस के खिलाफ बिदती इंसान, जब हम मिलाद मनाते हैं तो तुम्हें परेशानी क्यों होती है? मिलाद से ना तो मिलाद से हमारी हालत खराब होती है। बिल्कुल हालत खराब होती है। अभी मिलाद आएगा तुम मातम करना शुरू कर दोगे। जमशेद भाई जी जी चलो माशाल्लाह, इसने मान लिया कि हर चीज का रखने के लिए हुक्म की जरूरत नहीं है। इस अहले हदीस ने मान लिया, हमारी इसकी शिकस्त हो गई और हमारी जीत हो गई। चलिए रख दीजिए इसका फोन, मिलाद से हमको रख दीजिए इसको फोन, रख दीजिए, हो गया इसका काम। भूख गए रख दीजिए मिलादियों से। जमशेद भाई, हाँ जमशेद भाई जी जी रख दीजिए इसका फोन। अब इसने अपने मुंह से कह दिया ना, रख दीजिए फोन, उनसे काटो उसका फोन। देखिए सामीन इकराम, यही हमें साबित करना था। इसने अपने मुंह से कह दिया कि हर एक चीज का हुक्म नहीं होता। सुना ना आपने जमशेद भाई? ये है अहले हदीस जमात। जी, आप बहस के अंदर जब हम मिलाद मनाते हैं, हाँ, इसके शेख ने कहा था कि हमारे शेख साबित करेंगे। ये तो सिलेंडर बोल गया पहले ही कि हर चीज के लिए हुक्म नहीं होता। तो अब यहाँ से पता ही लगा कि जब हम मिलाद मनाते तो कहते हैं कुरान हदीस से दिखाओ, हुक्म दिखाओ, अल्लाह के रसूल का और हुजूर का सहादा का हुक्म दिखाओ कि वो उन्होंने मनाने का हुक्म दिया हो। यही चीज हमने इनसे बोली कि जमीयतुल अहले हदीस का जो तुम फोल्डर बना बना के घूम रहे हो और जो तुम डाल रहे हो, इसका हुक्म दिखाओ। तो कहता है हर चीज का हुक्म नहीं होता। तो अब यहाँ से ये पता लगा कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ बरगलाते हैं लोगों को, हुजूर की निस्बत से दूर करते हैं, हुजूर की मोहब्बत से दूर करते हैं। इस रिकॉर्डिंग का मकसद यही था, आवाम तक पहुंचाना कि हर एक चीज का हुक्म कुरान हदीस से नहीं होता। जो इसके अपने मुंह से, इसके आलिम ने अपने मुंह से उगल दिया, यही हकीकत है। और हर एक चीज दीन में बिदअत नहीं होती, अच्छा काम बिदअत नहीं होता। बिदअत की दो तारीफ है, एक बिदअत हसना और एक बिदअत सहिया। और बिदअत की तारीफ हर मुहद्दिस ने यही की है, जो काम सुन्नत के खिलाफ हो, जो सुन्नत के खिलाफ हो या जो सुन्नत से काम को रोके, वो बिदअत होता है। तो अब देख लीजिए आप लोगों के सामने ये हकीकत आ गई है। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।